السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی عید ٹرانسمیشن عید مہرباں، اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خانزی، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی ہوسٹ زہیب لطیف نیازی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حیدرآباد نیوز ہر سال آپ کو رمضان ٹرانسمیشن کے بعد عید مہرباں ٹرانسمیشن بھی آپ کے لیے لے کر آتا ہے، جس میں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ زبردست شخصیات. کل کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس میں ہمارے ساتھ حیدرآباد کی سب سے بڑی فلم زوار کی پوری کاسٹ موجود تھی، اور آج عید کے دوسرے دن میں ہمارے ساتھ شہر حیدرآباد کا فخر موجود ہیں، اور آپ ان کو جانتے ہیں اور ان کو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. رمضان المبارک کی پہلی سحری میں بھی آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا تھا، ان کی گفتگو کو سنا تھا، لیکن وہ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ گفتگو تھی. آج ہم عید مبارک کے حوالے سے یا عید کے فیسٹیول کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، اور مزید عید کے موقع پر بھی ان کی کچھ دلچسپ گفتگو یا دلچسپ باتیں سننے کی کوشش کریں گے. تو آپ سمجھ چکے ہوں گے میرے ساتھ موجود ہیں سیٹ پر فخر حیدرآباد، فرزند حیدرآباد، سپوت حیدرآباد، بریگیڈیئر عامر زاہد خان، ستارہ امتیاز. السلام علیکم سر. عید مبارک سر. آپ کو بھی بہت عید مبارک. وساطت سے تمام اہلیان وطن کو، بالخصوص حیدرآباد اور سندھ کے رہنے والوں کو عید مبارک. بہت بہت مبارک. جی زہیب، ہمارے ساتھ مزید جو گیسٹ ہیں ان کا آپ تعارف کریں. سب سے پہلے تو ناظرین کو عید بہت بہت مبارک ہو، اور عید کا دن ہو اور خوشی کا موقع ہو، اور ہمارے ساتھ حیدرآباد کی وہ شخصیات نہ ہوں جن کی وجہ سے حیدرآباد کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ دوسری شخصیت بھی ہیں ماشاءاللہ سے. آج شبیر مراد صاحب عید کا دوسرا دن ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کریں. سب سے پہلے تو شبیر بھائی، آپ کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. بہت مبارک ہو میری جانب سے بھی. کیا کہنا چاہیں گے عید کے دوسرے دن کے موقع پر؟ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے تمام اہل وطن کو عید مبارک کہنا چاہوں گا، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں یاد کیا. عید مبارک ہو گئی، اب آپ نے عید مبارک کہہ دیا، تو یہ ہے کہ اب آپ دونوں صاحبان عیدی دے کے جائیے گا ہمیں، اور وہ بھی تگڑی. بریگیڈیئر صاحب کے ہوتے ہوئے کون عیدی دے سکتا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب پہ ڈال رہے ہیں آپ. بریگیڈیئر صاحب حیدرآباد کو جو عیدیاں بریگیڈیئر صاحب دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، جو حیدرآباد کے لیے مطلب کر رہے ہیں، اور جو میں کہتا ہوں ڈیووشن ان کی حیدرآباد کے لیے، وہ کسی بھی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کسی سے بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. دیکھیں شبیر بھائی، آپ بحیثیت عامر بھائی تو عیدی لیجئے، لیکن اگر آپ کسی بریگیڈیئر سے عیدی مانگیں گے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بریگیڈیئر کہتے ہوئے 2 دفعہ زبان لڑکھڑاتی ہے، 1 دفعہ ٹھوکر کھاتی ہے، پھر پیچھے پلٹ کے وضو کرتی ہے، پھر جا کے یہ لفظ نکلتا ہے. آزمایا آپ سب لوگوں نے، ہمارے ناظرین بھی کیا کہتے ہیں. تو بریگیڈیئر کی عیدی جو ہے ذرا ثقیل، ذرا وسیق ہوتی ہے. ہمارا ریلیشن پرانا ہو گیا نا، اسی لیے آپ ہماری زبان نہیں لڑکھڑاتے. بریگیڈیئر آپ 5 دفعہ بول کے دکھائیں، آپ کو انعام دیا جائے گا. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو جو پیار ہے، جو آپ کی شفقت ہے حیدرآباد اور حیدرآباد کے لوگوں سے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا بریگیڈیئر کہنے میں. اسی عید کے موقع پہ میں آپ ہی کی بات کو بڑھاؤں گا. جب میں حیدرآباد میں آ کر مستقل قیام پذیر ہوا تو بہت سارے لوگ اکثر اس پہ حیرت کا بھی وہ ایک اظہار کرتے تھے کہ آپ اتنا لوگوں میں مل جاتے ہیں، اور طرح طرح کے مشورے آتے تھے. دیکھیے، کوئی بھی آپ عہدہ آپ کا ہو، کسی بھی آپ منصب پہ پہنچ جائیں، دراصل ابھی اگر ہم آرمی کی مثال لیں، فوج کی، تو میں فوج میں 17 سال کی عمر میں گیا، اس سے پہلے بھی سویلین تھا، اور جب میں فوج سے ریٹائرڈ ہوا، سبکدوش ہوا، تو بھی ایک سویلین ہوں. تو یہ درمیان کا جو سفر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت معزز، اور اس نے بڑی عزت سے نوازا، اور میں اپنے ملک کا شکر گزار ہوں. اور لیکن کہیں بھی یہ چیزیں آپ کے اندر کسی قسم کا یوں سمجھ لیجئے کہ غیر ضروری فخر نہیں لاتی ہیں. ہم سب آپس میں ایک ہیں، اور ہم سب پہلے انسان ہیں، پاکستانی ہیں، اور اس شہر کے رہنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو عیدی ہے، اور آج کا تو عید کا دن ہے. آپ ان لیجنڈز میں شمار تو نہیں ہوتے نا جو 10 روپے عیدی دیتے ہیں؟ جو وہ لیجنڈز ہم ان کو لیجنڈز کہتے ہیں، جو آج کے دور میں بھی 10 روپے عیدی دیتے ہیں. اور 10 روپے عیدی دینے کے بعد مشورہ دیتے ہیں کہ میاں اس کو سنبھال کے رکھنا. میاں اس کو سنبھال کے رکھنا. واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں ایسے استاد ملے. ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آج ایسی لیجنڈ خاتون ہم نے موجود 10 پیسے بھی مطلب عیدی تو نہیں، انعام کے طور پر لیا. ہمارے اساتذہ جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ خاتون چبندی نکالا کرتے. ہمارے ساتھ ایک خاتون بھی موجود ہیں جو کہ ابھی عنقریب جو ہے وہ پروفیشنل لائف میں آنے والی ہیں، اور ہاؤس وائف ہیں فی الحال، اور آرگنائزر بھی ہیں. میم عائشہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں، اور آپ کو بہت عید مبارک ہو. آپ کو بھی سب کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو یہ بتائیں کیسا لگ رہا ہے آج کی گفتگو سن کے؟ میرا تو فرسٹ تھے اس شو میں، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، انجوائے کر رہی ہوں. سر، میں عید کا موقع ہو، اور میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم عبداللہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو بھول جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. عبداللہ بلڈرز نے جتنا ہمیں سپورٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی اب تک ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، اور ماشاءاللہ سے
سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عبداللہ ٹاور کے رہائشی بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے، تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. تو ماشاءاللہ سے عبداللہ بلڈرز کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کی ٹرانسمیشن کو اور عید الفطر کی اس ٹرانسمیشن کو، بلکہ رمضان المبارک میں بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اور وہ خوبصورت سیٹ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں یہ عبداللہ مال میں ہے. میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں اس وقت ہم عبداللہ مال سے براہ راست ہیں آپ کے ساتھ، اور پورا رمضان المبارک ماشاءاللہ سے ہم عبداللہ مال سے براہ راست ہم لوگوں کو رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن دکھاتے رہے. یہ بڑی ہمارے لیے سر فخر کی بات ہے. اور ہم نے خاص طور پہ جو ہے نا آج ہم نے ان کو مہمان بنایا عید کے دوسرے دن، عائشہ شاہ کو، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ عبداللہ اسپورٹس ٹاور، جو کہ میں سمجھتا ہوں اور میں نے رمضان میں پورے رمضان یہ بات لوگوں کو بتائی، اور میں خود اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ عبداللہ اسپورٹس ٹاورز کراچی کے بعد حیدرآباد میں یا انٹیریئر میں جہاں پر بھی آپ جائیں بڑے بڑے پروجیکٹس آئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا منفرد اور ایسا زبردست نظام والا پروجیکٹ میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی. یا تو ہم نے کراچی میں اس طرح کا نظام دیکھا ہے، اس طرح کی جو کمیونٹیز جو سسٹم ہوتا ہے. یہاں پر حیدرآباد جیسے شہر میں اتنا کمیونیکیٹڈ نظام، ایک ایک چیز آپ کو جو ہے وہ سسٹم سے مل رہی ہے. عائشہ شاہ یہاں رہتی ہیں، ان سے ہم ایکسپیرینس پوچھیں گے، اور آپ بھی بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے. مجھے اجازت دیجیے، ماں سوائے چند کراچی میں بھی گنتی کی ہم شمار کر سکتے ہیں. یہ صرف کراچی ہی نہیں، میں کیونکہ خود اسلام آباد اور لاہور بھی ایک طویل عرصے مقیم رہا، تو یہ پورے ملک میں ایک بہترین رہائشی سہولت ہے، اور یہاں کے رہنے والے ایک خاندان کی طرح ہیں. اور نہ صرف یہ کہ حیدرآباد نیوز کو سہولت معاف کیجیے گا عبداللہ بلڈرز نے فراہم کی، بلکہ پورے رمضان طرح طرح کی دلچسپی کے سامان پیدا کیے گئے. صرف عبداللہ سے متعلقہ رہائشیوں کے لیے نہیں، بلکہ قاسم آباد بالخصوص اور حیدرآباد بالعموم اور پورے سندھ کے لوگوں کے لیے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی یوں سمجھ لیجیے دلچسپ قسم کے پروگرام ترتیب دیے گئے. اور پورا رمضان ایک تہوار کسی اور ایک ہلا گلا کسی کیفیت رہی. تو شکریہ عبداللہ. جی میں تو کہتا ہوں سر اب قاسم آباد کی جگہ عبداللہ آباد ہونا چاہیے. جی جی کیونکہ یہ زہیب کہتا ہے کہ اگر عبداللہ بلڈرز کو قاسم آباد سے نکال دیں تو بچے گا کیا، کیونکہ پورے قاسم آباد میں عبداللہ بلڈرز موجود ہے. کہیں نہ کہیں آپ قاسم آباد کے ہر حصے میں عبداللہ بلڈرز کی اسکیمیں ہیں اور بہت زبردست پروجیکٹس ہیں عبداللہ کے. صرف لیکن ہم اسپورٹس ٹاورز کو اس لیے منفرد کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی منفرد پروجیکٹ ہے. عائشہ آپ بتائیے، جیسے کہ گفتگو چلی ہے کہ عبداللہ اسپورٹس ٹاورز میں آپ کیونکہ رہائش پذیر ہے، کیسا نظام ہے یہاں کا، سیکیورٹی سے لے کے دیگر نظام، تھوڑے بار ہمیں بتائیں تفصیل. یہاں ہر چیز پرفیکٹ ہے، یہاں بہت انجوائے کرتے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی شو ہوتا رہتا ہے. سو ہم تو یہاں آ کے مطلب بہت خوش ہوئے. سیکیورٹی کا نظام کیسا ہے یہاں کا؟ زبردست. سیکیورٹی کا ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ٹینشن نہیں ہے، کوئی آ جائے گا کچھ بھی نہیں. میں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ وہ خوش نصیب ہے جہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی. لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. آپ تو وہ خوش نصیب ہے. آپ یقین کریں ہم گھر جائیں تو پانی نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، رات کو 10 بجے. اچھا گیس کا ایشو ہے کیا یہاں پر؟ نہیں، گیس کا کوئی ایشو نہیں گیس کا بھی ایشو نہیں ہے. میں کہوں گا کہ پینٹ ہاؤسز جو ہیں اس کے وہ اس قدر دل فریب نظارہ پیش کرتے ہیں پورے شہر کا اور دریائے سندھ کا. اور حیدرآباد کیونکہ شاموں کے حوالے سے مشہور ہے، ہواؤں کا شہر ہے، تو جو ہوا میسر ہوتی ہے پینٹ ہاؤس میں چھت پر وہ اپنی مثالات ہیں. پینٹ ہاؤس تو سر ہم نے دیکھے بہت خوبصورت ہے، اور چھت پہ اب گرمیوں میں جا کے اگر بیٹھ جائیں تو ایسا لگے گا کہ ہوا آپ کو ٹھنڈ لگائے گی. تو کیا ہی بات ہے سر. عبداللہ بلڈرز باقی ایک شاہکار ہے، اور اقبال قریشی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں. نجم صاحب کا، بریگیڈیئر صاحب کا، آپ لوگ ہیں تو سر ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو بہت شکریہ. آگے ہمارے پاس بریگیڈیئر صاحب کے لیے کوئی خاص سوال؟ بریگیڈیئر صاحب سے سوالات نکلتے ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب سے جب گفتگو شروع ہوگی تو آپ کو بہت سارے سوال ملیں گے. بریگیڈیئر صاحب، بات یہ ہے کہ عید کا موقع ہے تو عید کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک ایسے ادارے میں رہے ہیں جہاں پہ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اور کوئی بھی دن جو ہے وہ ڈیوٹی کے آگے نہیں رہتا، چاہے رمضان ہو چاہے عید ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کے دن بھی جو ہے وہ آپ کے ڈیوٹی کے یا اپنی فرائض کی اس میں انجام دہی میں نکل جاتے ہیں. تو کوئی ایسی عید گزری جس میں آپ ڈیوٹی کرتے رہے اور بھابھی ناراض ہو گئیں؟ نہیں، بھابھی تو خیر ناراض نہیں ہوئی، کیونککہ کوئی ایسی عید گزری پہ مجھے تھوڑا سا اتفاق نہیں ہے. بیش بہا عیدین ایسی گزری. 1989 میں نے پاک فوج میں کمیشن لیا. اس سے پہلے تربیت تھی، چلیے اس میں عید پہ چھٹی ہو جاتی تھی، ایبٹ آباد کاکول میں تربیت ہوتی تھی، تو ایک آدھ دفعہ وہیں رہنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ 3 دن کی چھٹی میں وہاں سے آنا اور پھر واپس جانا ممکن نہ تھا. لیکن جب میں نے کمیشن لیا تو میری تعیناتی اوکاڑا میں ہوئی. تو
पहली 4 ईदें मुझे याद है कि मैंने यूनिट में ही यूनिट वालों के साथ गुजारी, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनके घर पंजाब में थे, मेरा हैदराबाद में था और मैं जूनियर था, तो किसी न किसी बहाने से ऐसा कुछ माहौल बन जाता था कि वो बामरे मजबूरी सही या यूँ समझ लें एक ज़रूरत के तहत मुझे वहाँ ठहरना पड़ता था। और इत्तेफाक की बात यह है कि 4 साल ईद के मौके पे जो छावनी में ईद की नमाज का एहतमाम होता था स्टेडियम में, असलम बेग स्टेडियम था, बाद में उसका नाम असलम बेग स्टेडियम रख दिया गया उखड़ा में, उसमें एहतमाम जो होता था वो हमारी यूनिट करती थी और यूनिट में मैं अकेला अफसर होता था, साथ CO या एक 2 ऐसी ज़ाहिर है मौजूद होते थे, तो वो फिर जहाँ नमाज़ें बिछवाने और उनका इंतज़ाम करने और ईद के हवाले से हमारी 4 ईदें इस तरह गुजरी। 5वीं ईद पे मैं लाहौर जनरल हुमायूं खान बंगश जो कोर कमांडर थे उनके साथ, लाहौर कोर कमांडर के साथ ADC चला गया, और वो एक थोड़ी सी इस तरह ईद थी कि क्योंकि मैं कोर कमांडर के साथ था तो ईद की नमाज जब हम पढ़ने पहुँचे तो सबसे आखिर में कोर कमांडर साहब तशरीफ़ लेकर गए। जब सारी तैयारियाँ मुकम्मल थीं तो मैं उनके साथ गाड़ी में से उतरा, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि शायद ये वो 4 साल खिदमत का इनाम है कि जो मैंने 4 साल सफ़ें बिछाई और लोगों की आवभगत की और इंतज़ामात किए। अब 5वें साल, हालांकि मैं इतना सीनियर नहीं हूँ, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर के साथ मेरी मौजूदगी के बाइस मुझे मौका मिला कि एक अहमियत के साथ और एक आखिर में आके अगली सफ़ में या जो भी एक एहतमाम होता है, एक एहतमाम के साथ अगली सफ़ में जगह मिली और हमने ईद की नमाज़ पढ़ी। फिर बाद में जो भी हम CMH में मरीज़ों को मिलने गए, गवर्नर हाउस गए, लोगों ने ओपन हाउस में शिरकत की, तो बेशबहा ईदें। फिर जब शादी हो गई, जो आपने अभी भाभी की बात की है, तो हम ज़्यादातर मौक़ों पर ईद अपनी वहीं मनाया करते थे जहाँ हमारी तयनाती थी। और फिर बच्चे भी बड़े होना शुरू हो गए, लेकिन ईद बहरहाल ईद होती है, कहीं अपने आप को बोर नहीं होने दिया और कोई ना कोई दिलचस्पी का सामान जो है वो पैदा किए रखा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ शहर हैदराबाद का एक और नाम मौजूद है और हम उनका तारुफ कराना भूल गए, आपसे गुफ्तगू में ऐसे खो गए कि हमारे साथ आबिद रमज़ान मौजूद हैं और जो कि हैदराबाद की खूबसूरत आवाज़ हैं और फ़ख्र है हैदराबाद का। और रमज़ान तो चले गए हैं तो हाँ नहीं, ये मुस्तकिल वाले रमज़ान है इनके, ये तो मुस्तकिल वाले रमज़ान है। तो आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, कैसा लग रहा है और आपको ईद मुबारक हो? खैर मुबारक मेरी तरफ से भी हैदराबाद न्यूज़ को, आपको, ब्रिगेडियर साहब को, शबीर भाई, आयशा शाह और पूरे हैदराबाद पाकिस्तान को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत अच्छा लग रहा है और सर की गुफ्तगू सुनने का तो एक अलग ही मज़ा है। एक बड़ी सहर अंगेज़ आवाज़ है सर की और अंदाज़ है, तो उस अंदाज़ को देखने के बाद मेरा ख़ुद दिल कर रहा है कि मैं भी कुछ सर के लिए कुछ गाऊँ, कुछ इनके लफ्ज़ों के साथ लफ्ज़ मिलाने की कोशिश करूं। तो बिल्कुल, तो आपका गाना जो है, जो अब आप गाने लगे, जो हमें आप नगमा सुनाने लगे, वो ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान को आप डेडिकेट कर दें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सॉन्ग जो है वो ब्रिगेडियर साहब के लिए गाते हैं हम, और आप लोग मेरे साथ हैं। बिल्कुल, मेरे साथ कीबोर्ड पे नोमान भी है। बिल्कुल, नोमान भी। बड़ा अच्छा सा सॉन्ग है ये, और सर ट्रेंडिंग सॉन्ग है आजकल जो है। लेकिन अगर जब इसके लफ्ज़ों को आप देखेंगे तो शायद आपको वो दौर याद आ जाएगा जब मोहब्बत वाला दौर हुई थी, मोहब्बत प्यार वाला दौर याद आ जाएगा। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। और जैसे कि ये सॉन्ग सर के लिए है, क्या सारे हम क्लैपिंग करते हैं, ईद के दिन एंजॉय करते हैं। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। एक छोटी सी ख्वाहिश है, एक छोटी सी ख्वाहिश है, शादी से पहले की ख्वाहिश, लेकिन
ले ले बड़ा तेरे सबके नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ तेरी आंखों में बसता मेरा जहाँ कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका मेरी दुनिया तेरी तुम्हें हौसला दुआएं सुना सलामें सुना मुझे प्यार मुझे प्यार और कुछ मैं नहीं चाहूँगा सर, आपको प्यार हुआ था? था क्या मतलब है यार? ये बड़ा संगीन अच्छा, मैं नाम। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये शो मेरी वाइफ भी देख रही होगी, मैं उनसे मुखातिब होकर इतना कहना चाहूँगा, मुझे प्यार हुआ है, प्यार ये हुआ आप था डर के नहीं। कह रहे हैं। घबरा गए अपने खौफ को निकालिए। सर, मादरत के साथ ये कह सकते हैं मुझे प्यार हुए हैं। मुझे प्यार हुआ है, लेकिन सर ये सिर्फ वाइफ के लिए है ना कि मुझे प्यार हुआ है। अगर ऐसा ना कहा जाए तो शायद कि फिर ईद का दिन है और घर आप भी जाना है कैमरे से वापस। नजरें मिला के बात कीजिए। मैं बिल्कुल कैमरे की सर तरफ वो एक देखकर कहूँगा। टपोरी सी लैंग्वेज है, उसमें कहते हैं कि ये अपनी चौकड़ी भूल गए हैं। ये हुआ है बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ बात इतनी सी है कि मैं चाहे यहाँ बैठा हूँ लेकिन डर अभी भी यहाँ से चल रहा है, क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना है। घर पहुंचना है। देखिए, जब आप गाना शुरू कर रहे थे तो मुझे शायद ऐसा लगा कि आप वो वाला गाना ना शुरू कर दें कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ। हाय हाय, क्या बात है। नहीं, जरूर नहीं, जरूर आगे ये चलिए। सुनेंगे, ये अगर आप गा सकते ये हैं, मतलब- हाय हाय, तो मैं ये समझता हूँ अभी शुरू सुना है, से अभी ही। सुना है, अभी अगर सुना आप है। तैयार चलिए, हैं तो एक तो लाइन ये फरमाइश हो गई ब्रिगेडियर साहब। शबीर भाई की फरमाइश। बिल्कुल, शबीर भाई की भी माशाल्लाह ये छोटी फरमाइश होती है। सर ने एक फरमाइश दे दी तो एक फरमाइश दे दी। आगे का फिर हमारा ब्रेक का वक्त हुआ है, बहुत जी, ज्यादा है तो ब्रेक होता है। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। वाह वाह। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार वाह वाह। देखिए नाज़रीन, वाह 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 वाह। प्रयास किया कि- माशाल्लाह। लेकिन ये लाइन भूल गया कि प्यार भी उसी से रहेगा। वाह वाह जी नाज़रीन, इसको तो घर जाके पता नाज़रीन चलेगा। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। गुफ्तगू जारी है, एंटरटेनमेंट जारी है, बातचीत जारी है। ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, शबीर मुराद मौजूद है, मैम आयशा भी मौजूद हैं, आबिद रमजान की मधुर आवाज़ भी मौजूद है। कहीं मत जाए, देखते रहें हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद मेहरबा। 2 मिनट बाद आते हैं। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद उल फितर की ट्रांसमिशन ईद मेहरबा और हमारे साथ मौजूद हैं शबीर भाई। लेकिन शबीर भाई, आपको एक बात सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त जो हमारी ट्रांसमिशन है ना, ये छा गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप ये बताएं कि ईद का दिन कल कैसे गुजारा और आज क्या एक्टिविटी है, यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हैं? देखो, आपको पता है ईद का दिन होता है, वो मेहमानों का आना जाना होता है। ख़ासतौर पर मेरे घर पर सारे बहन भाई आते हैं पहले दिन, और क्या मतलब है, खाने का एहतमाम होता है मेरी तरफ से। बच्चे होते हैं उनके सब ईदियाँ वगैरह, ये इस तरह करके मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से सारा टाइम गुजरता है। और आज यहाँ से जाने के बाद ज़ाहिर है दोस्तों को टाइम देना है। आपको पता है टाइम
मुश्किल से मिलता है, छुट्टी का कोई दिन आता है, ईद का कोई दिन आता है। भाई आप आखिरकार आप तो दोस्तों को तो टाइम देना पड़ेगा, हैदराबाद के शहजादे जो हैं, आप हर कोई आपसे मिलना चाहता है, हर कोई आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है। शबीर भाई की शख्सियत माशाल्लाह बहुत प्यारी है और माशाल्लाह से एक बड़े बुलंदियों के मुकाम पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन शबीर भाई की क्वालिटी है कि आज भी उसी आजिज़ के सारी उसी मोहब्बत के साथ ये मिलते हैं, तो अच्छी बात है। तो शबीर भाई जाने के बाद जो है वो आज वही दोस्तों में टाइम देंगे। ब्रिगेडियर साहब आज आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी? ईद का दूसरा दिन है। उज़ैर, ईद का दिन जैसा कि अमूमन हमारे यहाँ एक रिवाज है तो वो रमज़ान की तकन गुजारने में गुजर जाता है और ज़्यादातर लोग सोकर भी गुजारते हैं या वो टेलीफोन पर अपने उन अहबाब से जो शहर से बाहर मुकीम है उनसे सलाम दुआ ली जाती है। अलबत्ता ईद का जो अगला दिन है जो आज है, तरूबी जिसे कहते हैं, उसमें फिर खाने पीने का इत्माम होता है, रिश्तेदार अहबाब हमारे यहाँ भी जमा होते हैं और दोस्त भी जमा होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे कि आपको पता होगा दोनों भी तशरीफ ला रहे हैं, अच्छा अल्लाह गुल्ला करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आने वाला है और हम बिल्कुल आपके साथ इंजॉय करेंगे। और नाज़रीन बात ये नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब की संगत जो है ना वो तो ऐसी है कि आप बस इन्हें सुने जाएँ, आप बोर नहीं हो सकते इनके पास। और आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लें, ब्रिगेडियर साहब की नॉलेज माशाल्लाह इतनी अच्छी है, हम तो भाई सीखते रहते हैं इनसे और इंशाल्लाह आगे भी सीखते रहेंगे। और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि ब्रिगेडियर साहब का जो दस्ते शफ़क़त है वो हमारे ऊपर मौजूद है। और शुरू से जब से हैदराबाद में ब्रिगेडियर साहब आए हैं, जब से अब तक ब्रिगेडियर साहब हमसे मोहब्बत करते रहते हैं और बिल्कुल हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। और हमारे लिए आमिर भाई भी हैं और ब्रिगेडियर साहब भी हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आयशा की तरफ जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये भी माशाल्लाह बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं और ईद के दिन को मुस्कुरा कर सेलिब्रेट कर रही हैं। और बस ये है कि सोचा कि क्यों ना इनसे भी गुफ्तगू की जाए। आप तो ये बताइए कि आप लग थोड़ी सी ना शरारती टाइप की लग रही हैं, आप तो अपनी फ्रेंड्स के साथ किस तरह की शरारतें करती हैं और ईद को किस तरह एंजॉय किया अपनी फ्रेंड्स के साथ? हंसी मजाक एंजॉयफुल करते हैं, जो भी मतलब फ्रेंड्स हम हैं तो कितना बड़ा आपका सर्कल है और क्या मतलब कोई डिफरेंट कोई ऐसा वाकया बताएं ईद के हवाले से, कोई ऐसी मुनफरिद चीज़ बताएं जो नाज़रीन को इंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं। अगर वैसे हम गांव से हैं तो वहाँ होते हैं तो फैमिली के साथ होते हैं, शहर में हैदराबाद में तो फिर होटल वगैरह उनके साथ घूमना फिरना एंजॉय करते रहते हैं। तो होटल माशाल्लाह आप लोगों की बदौलत होटल चल रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है जी, ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। आप होटलों पे जाते रहें, खाते रहें, ईदों को मनाते रहें। और सर ये मुझे बताइएगा कि मैं थोड़ा सा जाना चाह रहा था नमल की तरफ से तो ईद वाले दिन यार नमल को रहना। मैंने जहाँ तक ये सुना है कि और जहाँ तक खबरें पहुँची हैं कि बहुत से लोग आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। अच्छा हाँ, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, ये उनका प्यार है। अगर कोई मुझे याद करता है कभी इदारे जो होते हैं वो मुस्तहकम और मुस्तकिल होते हैं और अफराद आते जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी खुशियाँ और नमल की तरक्की उसको दोचंद करे। और मेरी तमाम ये समझ लीजिए कि खिदमात हर हवाले से तालीम के लिए वक्फ़ हैं और नमल तो मेरा अपना इदारा है और मुझसे उसको दूर नहीं किया जा सकता। और रमज़ान की जो हमारी नशियात थी पहली, उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि वाबस्तगी ख़त्म हो सकती है लेकिन निस्बत जो है वो दायमी है। और नमल और मेरी निस्बत पूरे शहर को पता है, सबको पता है। तो नमल का शुक्रिया, नमल के चाहने वालों का शुक्रिया और नमल से मुताल्लिक़ और तमाम हैदराबाद का शुक्रिया कि आप लोग इज़्ज़त से मुझे याद करते हैं और अभी भी आप उनके साथ हैं। और मेरी तरफ से तमाम हैदराबाद को और नमल के तमाम लोगों को ईद मुबारक। नहीं वैसे एक बात है, ये सवाल मैंने आपसे ब्रिगेडियर साहब रमजान ट्रांसमिशन में भी किया था कि आपका वही नपतुल्ला जवाब है, असल जवाब जो लोग लेना चाहते हैं आपका सेम जवाब है बिल्कुल जो आप बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं? बस छोड़े फिर वही वाली बात है कि बातें वक्त कलील है, बातें तवील है और बात फिर कहीं और निकलेगी, फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। देखिए मैं मस्बत फिक्र आदमी हूँ और हमेशा मस्बत बात करता हूँ और एक नहीं 10 जामियात हैदराबाद बिल्कुल शहर जो है उसका अहल है और आप देखेंगे और आपने यही कहा था। तो लेकिन सर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मतलब मैं किसी शहर के हवाले से बात नहीं कर रहा, मेरा अपना ओपिनियन है कि जब और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम लोगों को जब ये फैसला लिया था तो उस वक्त जब आपने मुझे बताया बुलाकर कि भाई मैंने ऐसे ये कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपने मेरे एक्सप्रेशन चेक किए थे उस टाइम और मैं कितना अफसरदा और कितना गमज़दा हो गया था। मैं भी बकायदा गहरे गम से गुजरा, सदमा भी हुआ मुझे, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, बहुत ज्यादा अस्पताल परेशानी में आ गया था,
4 दिन तक ये मेरी केयर करते रहे। वाह। मैंने और झूठ बोलना नहीं झूठ की बात नहीं, तो मोहब्बत हमारी आपसे सर। हाँ, लेकिन सर नहीं, लेकिन असल में क्या जहाँ है, जाते हैं रौनक लगा, बिल्कुल आपकी रौनक है, आपकी आप असल रौनक तो आप खुद है ना। हाँ, लेकिन मेरा जो मैं ओपिनियन देने लगा था, मेरा ये था कि बस मेरा ओपिनियन ये है कि मतलब हम आपको नमल के साथ जुड़ा देखना चाहते थे। मतलब एज ए शहर हैदराबाद की तामीर और तरक्की में जिस तरह नमल के साथ रह के जो आप चीज़ें कर रहे थे और जो एक फ़्लो आया था हमारे दरमियान, मुख्तलिफ इवेंट्स होना ख़ास तौर पे, और एक तालीमी इदारा, ऐसा तालीमी इदारा जो कि मैं समझता हूँ कि शहर हैदराबाद में आज तक और आने वाले दिनों में भी ऐसा तालीमी इदारा नहीं होगा जिस तरह नमल में आपकी वाक़ियत के साथ जो इदारा था, जो एक्टिविटीज़ थी। क्योंकि देखें अब आपको नमल से आए हुए 2-3 माह हो चुके हैं, लेकिन वो 2-3 माह में हमने वो चीज़ें वहाँ नमल में अब नहीं देखी जो आपके ज़माने में हुआ। देखो उज़ैर, मैंने बहुत सख्ती से तुम्हें ताकीद की थी कि ईद वाले दिन जो है नमल की और कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं करोगे। ने जिक्र छेड़ा, मेरे अंदर का गम बाहर आ गया। हैदराबाद में कुछ इस किस्म की बात है कि लोग नमल और मुझे एक दूसरे से पेवस्ता रखते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको, शायद जो नाजरीन जिनसे मुलाकात नहीं भी हुई और उनको भी अगर ये सवाल जहन में है। देखिए हम सब के बहुत सारे बहन भाई हैं, मतलब हमसे बड़े भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, और ख़ुद हमारे अपने बच्चे अगर हम उस उम्र में हैं तो ये नहीं होता कि एक बच्चा पैदा हो जाए तो माँ बाप उसी के साथ वाबस्ता रहे। दूसरा बच्चा भी होता है, बेटी भी होती है, बेटा भी होता है, और उन सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। और नमल कोई ये पहला इदारा नहीं है कि मैंने जिसकी आबियारी की, जिस नहज पे वो पहुंच चुका था या इससे कबल जो इदारे थे जिस नहज पे भी थे, अपना खून पसीना देकर उनको फ़रोग़ दिया, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। अब और भी इदारे हैं वो भी उसके मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि सारी औलाद पे बाप का हक़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि एक नमल नहीं, बेशुमार नमल आप देखेंगे, और सिर्फ तालीमी शोबे पे नहीं बल्कि हर किस्म के इस्लाही और मस्बत जगह पर हमें आप पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह जो शहर हैदराबाद की तामीर और तरक्की का जो सफ़र है, और जिस तरह आपने जो बीड़ा उठाया है शहर हैदराबाद का, और आप इसी तरह इसको लेके चलेंगे और हैदराबाद की तामीर और तरक्की और कामरानी के लिए काम करेंगे। आवाज़ हैदराबाद के बारे में पूछना चाहूँगा कि आवाज़ हैदराबाद और ज़ोहद, तो क्योंकि वो तो आपसे ही मंसूब है, तो आवाज़ हैदराबाद और ज़ोहद इन फ्यूचर अब क्या करने लगे? तुम ये ज़ोहेब के वो सवाल पूछ रहे हो क्योंकि आज से 4 साल कबल आपने एक मेरा इंटरव्यू लिया था, वो मेरा पहला मुफस्सल इंटरव्यू था, और मैं आज भी उसकी पजीराई करता हूँ। ये सवाल तो उस इंटरव्यू के लिए हम उठा के रखते हैं, लेकिन क्योंकि अब आपने पूछ लिया तो ये मेरे पास अमानत है। ईद के हवाले से मैं कहूँगा कि आवाज़ हैदराबाद, अभी मैं यहाँ भी जिक्र कर रहा था, एक बहुत तवाना आवाज़ है हैदराबाद की, और ये किसी किस्म की सियासी इसके अंदर मसलहत नहीं है, बल्कि एक मोहब्बत में हैदराबाद शहर की, और इसके जो फोरम है, इसका जो प्लेटफॉर्म है वो सब के लिए खुला है, और इसमें ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। और ये जो ईद की आज शाम हम जो इकट्ठे हो रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी आवाज़ हैदराबाद की छतरी तले इकट्ठे होंगे, और आप देखेंगे कि ये एक इंतहाई मौसर बनकर उभरेगी, और जब वक्त आएगा तो आप इसकी अफादियत सिर्फ आप ही नहीं, पूरा शहर इंशाअल्लाह ताला वो उसको देखेगा। इंशाअल्लाह। शब्बीर भाई हमारे ख़ास हैं मेहमान आज के। तो शब्बीर भाई, एक्टिंग की दुनिया कैसी है? खैर हम दोनों एक ही फील्ड के हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा लेट आए एक्टिंग में, लेकिन आप ही छा गए, कैसा लगता है? हाँ, शौक़ तो मुझे बचपन से था ज़ोएब, आपको पता है, लेकिन मसला ये हमारे हैदराबाद में रहने वालों का ये मसला है सबसे बड़ा कि कराची में तमाम एक्टिविटीज़, तमाम फिल्म ड्रामे कराची या लाहौर, पहले लाहौर में होते थे, अब सारा बिज़नेस शोबिज़ का कराची में आ गया, ड्रामे फिल्में सब कराची में आती हैं। तो ज़ाहिर है फिर वहाँ जाना आना बड़ा मसला होता है ना हमारे हैदराबाद वालों के लिए। तो यूँ मुझे लेट हो गया, मतलब ज़ाहिर मेरी जॉब थी, मैं जॉब में इस तरह चलता रहा कि नीचे ग्रेड्स थे। जब मैं 17 ग्रेड में आया तो फिर थोड़ा सा लीनियंसी मिल जाती है, आपको पता है, रिलीफ मिल जाता है। तो फिर मैं गया, जब ट्राई करने लगा तो इत्तेफाक एक ऐसा हुआ एक दिन कि मैं जब वहाँ गया आमिर भाई, तो आपको पता है चांस बहुत मुश्किल से मिलता है, ख़ासतौर पर शोबिज़ के अंदर। तो एक दिन मैं जैसे खूबसूरत आदमी को तो फौरन चांस मिलना चाहिए, माशाल्लाह स्मार्ट है सारी आप। तो जब मैं एक दिन सर गया सिग्मा में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्मा एक इदारा है अमाई सईद साहब का, 6 सिग्मा, उधर में गया। तो जिन साहब के पास में गया था वो आए नहीं थे वहाँ पर, कहा आज तो वो आए नहीं है।
अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, बैठा रहा इंतज़ार में। तो खातून थी रिसेप्शन वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें सामने वाले रूम में बैठ जाएं, गर्मी हो रही, उधर AC लगा हुआ है। तो जैसे मैं उस रूम में गया तो मैंने देखा सामने एक साहब बैठे थे, शॉर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, कानों में जो है उन्होंने कुछ लगाया हुआ था और स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। अचानक उनकी निगाह उठी मेरी तरफ, मैंने कहा अरे, बोला अरे शब्बीर भाई आप? मैंने कहा ज़ुहैब तुम यहाँ कैसे? बोला यार मैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, ज़ाहिर है यहाँ मैंने कोई सब्जी लेने तो आना नहीं तो बोला आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपको एक्टिंग का शौक है? मैंने कहा तो बस आवाज़, तो बोला कि बस आप इस ड्रामे में मेरे साथ हैं, तो इनकी मेहरबानी ज़ुहैब साहब की। और पहला ड्रामा था माशाल्लाह में, और बड़ी कास्ट के साथ, उस्मान खालिद भट्ट के साथ जो ऐद वफा में हीरो था, और बहुत बड़ा एक्टर है। उसके बाद मेरा अगला, ये तो आपने माशाल्लाह बता दिया, मुझे ये बताएं कि मेरे पास तो मैं जब हुमायूं सईद के बराबर में बैठे तो क्या फीलिंग्स थी? बस फीलिंग्स तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एक्टर आपके सामने बैठा है, और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी वहाँ पर भी कि जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो नदीम बेग साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। ख़ुद हुमायूं सईद साहब ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। हुमायूं सईद साहब ने कहा कि आप लगता है पहले से काम करते आ रहे हैं, लेकिन सर 2 ड्रामे कर चुका हूँ मैं, एक सुख चांदनी और एक अलिफ आपकी आपके मार्फत। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने। मैं आपकी इजाज़त से जी मुझे पूरा यकीन है, और आज ईद का ये ईद के अयाम है इंशाल्लाह ताला, और कबूलियत की घड़ी हो सकती है कि मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह जैसे भी इन्होंने लाहौर और कराची की बात की, कि लाहौर और कराची के साथ साथ हैदराबाद अनकरीब शोबिज़ और इसमें जो प्रोडक्शन है, मीडिया हाउसेस जो है, इसमें अपना मकाम बनाएगा, और आप दोनों को मैं उसके हरावल उसमें देखता हूँ। बिलखुसूस नाजरीन को मैं बताता हूँ ईद पर कि इनकी एक बहुत अच्छी फीचर फिल्म तैयार हो रही है ज़फ़ार के नाम से, और शायद कल उसका आप लोगों ने कास्ट से भी वो किया होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है, और मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद में इस किस्म की जो प्रोडक्शंस हैं, इस किस्म की जो पेशकश है, वो हैदराबाद से निकले, और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो लोग हैं, उसमें पूरी सलाहियत है कि वो इस फ़र्ज़ को और इस काम को आगे लेकर बढ़ सकते हैं और अपना नाम पैदा कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं सर आपको बताऊं कि जो बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हैं ना, जिनको लोग देखते हैं कहते हैं यार ये तो इतना बड़ा एक्टर है, इसकी तो बड़ी एक वर्थ होगी, बड़े पैसे लेता होगा। हम यकीन करें, हम दोनों मुलाकात करने के लिए गए कराची, क्योंकि हम फिल्म के साथ वेब सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो बड़ी कास्ट के साथ, टीवी की कास्ट के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं। तो डायरेक्शन मैं कर रहा हूँ, DOP ये है, और साथ साथ आपको पता है अल्लाह ने ये टैलेंट भी दिया है। तो बड़े बड़े एक्टर्स माशाल्लाह से हैदराबाद आने के लिए राज़ी हुए, काम करने के लिए राज़ी हुए, और सबसे बड़ी बात कि एक एक्टर अगर कराची में 1 लाख रुपए ले रहा है तो उसको हमने 50,000 रुपये पर डे पे राज़ी किया। ये बड़ी कामयाबी है जो हमने अपनी ज़बान से और अपनी बात से उनको राज़ी किया, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बस ये ईद के दिन गुजरे तो इंशाल्लाह हमारे शूट शुरू हो जाएंगे, और बड़े बड़े एक्टर्स। मैं एक बात और बताऊँ, इधर 50,000 की नहीं है, वो 50 करोड़ की है, हाँ। उससे भी ज़्यादा की है, कि मैं और ज़ुहैब भी एक इरादा रखते हैं, अब वो कब पूरा होता है, कि हम एक अछूती और एक अनोखे अंदाज में दस्तावेजी पेशकश करना चाहते हैं हैदराबाद के हवाले से, और उस पर हमारा काम जारी है, और अनकरीब आप देखेंगे कि उज़ैर और मैं, हो सकता है अगर इस पे काम करना, बिल्कुल हम काम करना, बिल्कुल हम काम ये करेंगे। कोई रिवायती किस्म की दस्तावेजी फिल्म नहीं होगी, और ये एक बड़ी दिलचस्प मालूमाती, और जिसमें एक यूँ समझ लें कि बहुत कुछ नया अंदाज आपको नजर आएगा। जी बिल्कुल। और नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि, और ब्रिगेडियर साहब आपको भी बताऊँ कि सबसे अच्छी बात जो थी, जब हम, क्योंकि वो जो बड़ा एक्टर थे उनका नाम है सलीम महराज, तो सलीम महराज से हम मिले, तो जब हम उनके पास रब्ता करने के लिए गए, तो वो बहुत नाइस पर्सन है, और सबसे बड़ी जो कामयाबी थी जिसपे मतलब मेरा दिल बाकायदा जो है वो, मतलब मुझे एक आंसू भी आ गए थे मेरी आंख में खुशी से, कि जब हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और बात हुई, उनसे मीटिंग हुई, तो उन्होंने जो है वो शुरू में ये बात कही कि भाई वो तुम्हारी ज़वार फिल्म कहाँ तक पहुंची। मतलब उनका सवाल था, हमने उनको नहीं बताया, उनका था। अच्छा, उसमें शबीर भाई का बड़ा अमल दखल है, क्योंकि सलीम महराज इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शबीर भाई हमारा जो है ना सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट है कराची में, कि उन्होंने पूरे कराची में जो है ना प्रोडक्शन में मशहूर किया हुआ है, हैदराबाद से एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन आ रही है, ज़वार आ रही है, और आधे से ज्यादा कराची कत्ता कलामी के लिए माफी चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो किसी को नहीं पता, दानिश नवाज इनका बचपन का दोस्त। अच्छा, अच्छा, दूसरी एक बात माफ कीजिएगा, मैं ब्रिगेडियर साहब आमिर भाई, तब तो आमिर भाई कहूंगा मैं, ब्रिगेडियर साहब नहीं कहूंगा, लड़खड़ानी है ज़बान। ये बात लड़खड़ाने की नहीं है,
बात प्यार की है सर, प्यार की है ये। मेरी ब्रिगेडियर साहब को या आमिर भाई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, ठीक है ना। हमारे एक बहुत सीनियर अफसर हैं सलाउद्दीन साहब, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके मैंने बहुत उनकी ज़ुबानी आपका तारुफ रहा है, देखता भी रहा हूँ आपको। तो लेकिन जो प्यार आपने आज मुझे दिया पहली मुलाकात में, वो से अंदाज़ा होता है कि वो जो अभी तारीफ़ है आपकी करते हैं लोग वो गलत। तो मैं ये कहता हूँ कि आमिर भाई कि हमारा जो माइनस पॉइंट है ना, टैलेंट बहुत है हैदराबाद के अंदर इतना, मगर माइनस पॉइंट हैदराबाद का ये कि कराची के हम नज़दीक हैं, हम दूर भी हैं और करीब भी हैं, इसी वजह से। वरना हैदराबाद एक इतना बड़ा हब है कि जिससे भी आपने कहा कि यहाँ भी प्रोडक्शन हाउसेस बन सकते हैं और इंशाल्लाह बनेंगे, आपकी रहनुमाई रही तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। एक यही बहुत बड़ा हैदराबाद न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आमिर भाई इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देंगे। बिल्कुल, आमिर भाई की सरपरस्ती हमारे साथ है और इंशाल्लाह जैसा कि आपको मालूम है शबीर भाई, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हैदराबाद शहर में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी मीडिया इंडस्ट्री कायम होगी और उसकी शुरुआत हम ही करेंगे और हमने कर दी, डाल चुके हैं ज़बार, और उसके बाद एंटरटेनमेंट पाकिस्तान का बल्कि हैदराबाद का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल जिसमें आपको एक बहुत जबरदस्त वेब सीरीज देखने को मिलेंगी, आप भी हमारे साथ उसमें होंगे और कराची को उठा के हैदराबाद लाएंगे। जो मैं आपको कहता था कि कराची वालों को मजबूर करेंगे कि भाई हैदराबाद में आगे काम करो और हैदराबाद का जो हमारा फनकार है उसको इतनी रिस्पेक्ट दिलवाएंगे कि वो यहीं बैठ के अपने शहर में बड़े फनकारों के साथ काम करेगा और इंशाल्लाह ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं जैसे लुबना असलम है, राशिदा तबस्सुम है, वो खुद कॉल करके मुझे कहती है कि यार तुम तो इंतजार में बैठे हैं, तुम कब बुलाओगे। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि आउट ऑफ सिटी जाके काम करें। ये हमारे कराची के जो एक्टर्स हैं ना, वो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आउट ऑफ सिटी। जब मैं कराची में था तो हम शूट करने के लिए खसारा ड्रामे की हैदराबाद आए थे, तो मैं यकीन करें घर पे नहीं रहा, मैंने उनको कहा कि आप मुझे होटल में रूम लेके दें, तो फिर मेरा भी रूम था होटल में, तो मैं एक ऐसा लग रहा था मैं किसी आउटडोर शूट पे आया हूँ, तो उसके मजा ही अलग होते हैं। तो एक्टर्स भी बड़े खुश होते हैं इस चीज से। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह ये हम सब मिलके, क्योंकि हमने जिम्मेदारी ली है और ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ कह दीजिएगा कि एक 5 स्टार होटल भी हमें खोलना पड़ेगा। बिल्कुल जल्दी खुलेगा और आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं, रमादा खुल रहा है, रमादा बन रहा है और अपना होटल 1 भी तैयार हो गया है। अभी शहर हैदराबाद माशाल्लाह हमारा तरक्की कर रहा है, ये तो थोड़ा सा वक्ती, थोड़ा मुल्क की मईशत की वजह से सेटबैक हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये मामला हल होगा। ब्रिगेडियर साहब अगर इसी तरह हमारे साथ रहे तो ऐसा अब्दुल्ला होटल भी खुल जाएगा। अब्दुल्ला होटल भी खुल जाएगा। लेकिन गुफ्तगू जारी है नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक जो है वो हमारे दरमियान में हमेशा हाइल हो जाता है, लेकिन ब्रेक अगर नहीं चलेगा तो ये ट्रांसमिशन कैसे चलेगी, तो ब्रेक चलाना जरूरी है। देखते रहे हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद मेहरबा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट, मेन बाईपास रोड, अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लॉट, सिक्योरिटी सिस्टम, वेकरा रोड, खूबसूरत पार्क। त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333 078 1163। अच्छा जी, फरमाइश बड़ी अच्छी सी दे दी है और हमारे शबीर भाई यहाँ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब के साथ और आयशा जी के साथ। बड़े प्यारा सा एक सॉन्ग शबीर भाई की फरमाइश है, करते हैं। आज ईद का दूसरा दिन है तो मैं पूछना चाहता था कि शबीर भाई ये सॉन्ग हम भाभी के लिए गा सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरी फरमाइश है उन्हीं के लिए है। तो बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, यकीनन हमारे नाजरीन भी इंजॉय करेंगे और हमारे गेस्ट जो हैं वो हम लोग तो यकीनन करेंगे इस सॉन्ग को एंजॉय। आइए सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। सारी दुनिया भुलाए बैठा
मुझको प्यार की जवानी तुम हो, अब तो सांसों की रवानी तुम हो, जो लिखी है मेरे ख्यालों में, खूबसूरत वो कहानी तुम हो, नजरे झुकाए बैठा जरा सोचो कि इंतजार में तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार भुलाए बैठा सोचो ना सोचो कि बुलाए बैठा हूँ ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो आबिद रमज़ान ने समा बांधा और ज़बरदस्त गाना जो है हमें सुनाया और हम सब झूमने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये शब्बीर भाई से ये पूछना पड़ेगा कि शब्बीर भाई, ये आपने भाभी के लिए ही फरमाइश की थी या कोई और भी हो सकता है ऑप्शन? कोई आपने कोई? नहीं, मैंने फरमाइश सिर्फ गाने की थी बाकी आगे का माहौल ये खुद बना रहे हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद मेहरबान और अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त ये जारी है। हमारे साथ मौजूद है फर्जंद हैदराबाद ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान सितारा इम्तियाज़ और हैदराबाद के दूसरे फर्जंद और सपूत शब्बीर मुराद, जो कि ज़बरदस्त एक्टर हैं और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। इसके अलावा मैम आयशा जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू जारी है, आबिद रमज़ान भी मौजूद हैं। आप मज़ीद आगे गुफ्तगू की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नया इस ईद पर जो है वो सुनने को दें और कुछ नई इंटरटेनमेंट इन शख्सियात से बातचीत के ज़रिए हम निकालने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही होती है कि नाज़रीन को अपने जो है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करें और गो के हर साल ये शख्सियात हमारे साथ होती हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, इसलिए नए सवालात और नई गुफ्तगू की कोशिश हम करते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, तो गुफ्तगू जारी थी, हैदराबाद शहर के हवाले से हम बात कर रहे थे, ब्रेक का टाइम हो गया था, तो हम यही बात कर रहे थे कि शहर हैदराबाद की आबियारी हमने करनी है और हैदराबाद शहर को उसके खोए हुए मुकाम को हमने वापस दिलाना है। तो हम बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारे साथ एक्टर मौजूद हैं, तो हम थोड़ा सा शोबिस बरादरी की तरफ आ जाते हैं। शोबिस के ख़ास तौर पे जो हमारी हैदराबाद की जो शोबिस इंडस्ट्री है वो एक अरसा दराज से जो है ना मादूम है और खामोश है, और स्टेज तो फिर भी यहाँ पर होता है, लेकिन वो क्वालिटी थिएटर यहाँ नहीं हो पाता जिसकी ज़रूरत है, जो कि कराची में होता है। तो हम दोनों ने ये बीड़ा उठाया और कि भाई हैदराबाद शहर के टैलेंट को ना सिर्फ प्रमोट किया जाए, फिर करते करते हमने कोशिश ये की कि हैदराबाद में क्वालिटी प्रोडक्शंस की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के लोगों का हमारे साथ ताउन, और मैं उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम करम फरमाओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि जिसने ख़ास तौर पर मैं सवार की बात करूँगा कि जब हमने ये काम शुरू किया, तो क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा यूँ समझ लें कि बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए, कि मतलब एक बहुत ही छोटे सेटअप पे एक छोटे से शहर से आपने जो है वो आपके पास फंड्स इतने ना हो, हमारे पास कोई सर प्रोड्यूसर भी नहीं है इस फिल्म का, आपको पता है कि ये दोनों हम अपनी मेहनत से ही बना रहे हैं, और शहर हैदराबाद के जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ओन करते हैं शहर को, उनका इसमें ताउन शामिल है, तो उन सब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो फाइनली ज़वार अल्हम्दुलिल्लाह आपने तकमील के मराहिल में है और इंशाल्लाह ये सितारा एक दिन ज़रूर चमकेगा और हैदराबाद में समेत पूरे पाकिस्तान के सिनेमा घरों की जीनत बनेगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? देखिए, इसमें आपने जैसा जिक्र किया, आप माशाल्लाह, क्योंकि ये आपका शोबा है और आप इससे ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन दीगर अफराद भी, मैं चलिए अपनी बात करता हूँ। अभी गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा हमने एक बहुत ही बामकसद स्टेज ड्रामा किया, बिल्कुल, अदालत दिवालिया और काला कानून। बिल्कुल। तो जो इंसाफ का दिवालिया आजकल निकलते हुए नज़र आ रहा है, मुआशरे के इस हिस्से पर बिलखुसूस हमने चोट की, किस तरह हमारा जो मयार इंसाफ है वो
तनज़्ज़ुली की तरफ माइल है, और इसमें लोगों ने बड़ा उससे महसूस हुए, क्योंकि इसमें एक मौजू संजीदा था लेकिन बज़ला संजी थी, और इसमें एक थोड़ी सी ज़राफ़त थी, और इसमें मिज़ाह भी था, और मिज़ाह होने के साथ साथ यूँ ये हम कहेंगे कि एक चोट भी थी। तो वो ड्रामा मैंने ख़ुद लिखा था, और पेशकश जो थी साथ मेरी अपनी थी, और हिदायत कारी के फ़राइज़ सलीम देसवाली साहब जो हमारे बायनाज़ हैदराबाद का फ़ख्र है वो किया था। तो इसमें काफ़ी तंज़ भी हमने जो रवैये हैं हमारे उन पर किया। तो इस तरह और भी लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। फिर मेहरान आर्ट्स काउंसिल में शायद कुछ मुझे पता चला था कि स्टेज ड्रामे वगैरह हुए हैं, तो हम देखेंगे कि अनकरीब ये जिंदा मौशों की अक्कासी ये जो होती है अक्कास या आइनादार होती है। तो हैदराबाद के बड़े जिंदा दिल लोग हैं, और हैदराबाद के बड़े खुश मिजाज लोग हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि वो सहूलत और वो मौका फराहम किया जाए। तो शहर की रानाइयाँ इंशाअल्लाह ताला बाम उरूज पर पहुँचेंगी, और इसमें मेरा ताउन जहाँ भी मीडिया को चाहिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। आपसे हमारे इस मिशन पे भी आपने हम पे दस्तक शफ़क़त रखना है, जैसे हैदराबाद न्यूज़ साथ साथ मुझे स्टोरी मुझे साथ साथ याद है। हाँ बिल्कुल, और आपने अभी तक मुझे जो ना वो स्टोरीज नहीं दी है मेरी वेब सीरीज के लिए, आपने वो लिखनी है और आपने देनी है। वेब सीरीज के अलावा सर एक और बस उसको करतास पर मुंतकिल करना है। वेब सीरीज के अलावा हम सोच रहे हैं कि अगर कोई स्टोरी ऐसी स्टोरी हो जिसको लाइव परफॉर्म करें थिएटर हम बहुत कुछ करेंगे, तो बहुत कुछ करने का प्लान किया इंशाल्लाह। शबीर भाई भी बैठे हैं, मोस्टली इन चीजों में आगे इसलिए भी नहीं आते कि स्क्रिप्ट की बड़ी पुराने अंदाज से ही काम करें, और हम एक नया अंदाज दे सकते हैं, नई फिक्र दे सकते हैं, नई जहद दे सकते हैं। बिल्कुल। और लोग जो हैं जिनके ऊपर मायूसी गालिब है, ईद के दिन है, इंशाल्लाह ताला कोशिश हम करेंगे कि चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरे, और एक शादाबी आए, और एक निखार पैदा हो समाज में, मुआशरे में, इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि मैं, क्योंकि सर अगर हम देखें इस वक्त ऑल ओवर की बात करें शोबिस की, तो अगर हम ड्रामा इंडस्ट्री को देखें या फिल्म इंडस्ट्री को देखें, तो काफ़ी अरसा दराज से जो है ना स्क्रिप्ट की बड़ी कमी है हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है। हमारे पास वही घिसे पिटे ड्रामे हैं, आगे पीछे करके उनको रोटेट करके चलाया जा रहा है। तो अच्छे और मुनफरिद स्क्रिप्ट्स की जो है ना आजकल बड़ी फुकदान है। तो मैं समझता हूँ आपके कलम से गुलमहराबाद किताब लिखी तो उसमें 21 किरदार तख्लीक की, आपको पता है, और ज्यादातर उसमें मिजाह है और शगुफ्तगी है। तो वो तो एक बनी बनाई चीज मेरे पास मौजूद है, आपके पास मौजूद है, क्योंकि अब वो किताबी शक्ल में है। किसी भी एक किरदार को उठा लीजिए और उसके हवाले से दीगर किरदारों को शामिल करके, और उसमें बेशुमार मौजूआत हैं ज़िंदगी के और हैदराबाद की जो एक ज़िंदगी है उसके हवाले से। तो अल्लाह ने चाहा तो इन चीज़ों की कमी नहीं है। जहाँ तक लिखने का ताल्लुक़ है या उसकी पेशकश का ताल्लुक़ है, मेरा ताउन बिला मशरूत आपके साथ है। बहुत शुक्रिया शबीर भाई। क्या सूरत हाल है अब आगे ईद के बाद, अब के कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, थोड़ा नाज़रीन को बताएं। अभी कितने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं रमज़ान में, और आगे मजीद क्या कहाँ साइन किए, क्योंकि दानिश नवाज के तौर प्रोजेक्ट में अब आप होते हैं माशाल्लाह से। सबसे अहम चीज़ के थिएटर में दिखाई नहीं दे रहे, थिएटर में आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है? एक्चुअल में अभी आमिर भाई ने जिक्र किया था कि मेहरान आर्ट्स काउंसिल में भी कुछ हुआ था, उसके हवाले से बता दूं मैं कि एक फेस्टिवल था। अच्छा, हैदराबाद में चूँकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग हैं हैदराबाद के सीनियर लोग जो हैदराबाद के शोबिस के लिए काम कर रहे हैं। रफ़ीक इसानी साहब हैं, इसरार लगारी साहब हैं, नासिर बुनेरी हैं, हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं, सीनियर फनकार, बहुत सीनियर फनकार हैं, और हर जुबान में काम करने का अबूर उनको हासिल है। उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप ब्रिगेडियर साहब, आप भी नासिर खान मेरी मुलाकात है। नासिर खान बुनेरी कल हमारे साथ थे और हमारी फिल्म ज़वार के अंदर एक अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं, और बड़ा उन्होंने हमारे नासिर बड़ा नाम है, बड़ा एक्टर है, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ। रफ़ीक इसानी साहब का भी बड़ा ताउन हमारे साथ है। और जब हम फिल्म का सिलसिला लेके उनके पास गए कि हमने कहा भाई हम आपको कास्ट करना चाहते हैं और हम फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो भी ताउन जिस तरह का भी हम तुम्हारे साथ हैं, ये तो शहर हैदराबाद की खिदमत हो रही है, तो हम तो इंशाल्लाह वो अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। नासिर खान बुनेरी के लिए मैं ये कहता हूँ कि वो माशाल्लाह से पाकिस्तान का वाहिद फनकार है, वो वाहिद फनकार होंगे, पाकिस्तान में ऐसा कोई फनकार नहीं होगा। 6 से ज़ायद ज़बानों में सर वो उनको अबूर भी हासिल है, और वो इन तमाम ज़बानों के थिएटर, रेडियो और टीवी फिल्म कर चुके हैं, मतलब उनके पास उनके पोर्टफोलियो में शामिल है हैदराबाद के। लेकिन सर बदकिस्मती से पजीराई नहीं है।
اچھا पजीराई उसकी होती है जो कुछ नहीं कर रहा होता. तो बात हो रही थी वहाँ पर कि तो रफ़ीक इसानी साहब ने अब बड़े इनिशिएटिव लिए, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, नहीं, उनकी भी और एक बात किसी यकीन से मानिए ढकी छुपी नहीं है। कि उन्होंने एक फेस्टिवल यहाँ पर एक बिल्कुल। बड़ी मुश्किल काम बहुत था, बहुत मेहनत है, आमिर बहुत भाई, मेहनत। एक मुश्किल काम था कि यहाँ 10 ड्रामे फेस्टिवल में उन्होंने किए, 5 सर वो हिंदी, 5 कराची उर्दू। आर्ट्स काउंसिल को भी हाँ। लाया, वो नापा को भी हैदराबाद में जी हाँ, ला रहे हैं, बिल्कुल। नापा के ताउन से भी तो ये ड्रामे कि करवा रहे अच्छा मैं क्यों नजर नहीं आया, मैं यूं नजर नहीं आया कि मेरी मसरूफियात थोड़ी टीवी की तरफ थी ज्यादा। हाँ। मुझे कहा था एक दो ड्रामों में मुझे, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं वहाँ टीवी पे बिजी था। सर आपको भी कहा था, मुझे भी कहा था, लेकिन मैं वालदा की वजह से नहीं कर सका था क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, तो हालांकि ये कि लेकिन वो क्या है सर- ऑफर्स थी वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और बिल्कुल उन्होंने हैदराबाद शहर के लिए अच्छा काम किया और 10 रोजा फेस्टिवल करवाया। बहुत बड़ी जाहिर बात बात है, है, उनकी बहुत बड़ी उसमें किरदार उसका शामिल है और अच्छी बात है शहर हैदराबाद को अच्छे मुनफरिद ड्रामे देखने को मिले, 5 सिंधी 5 उर्दू, और इसके अलावा सलीम गुड्डू साहब बहुत एक्टिव हैं इस हवाले से, वो बहुत ड्रामे वगैरह करवाते रहते हैं हैदराबाद में। सर फनकार की कमी नहीं है हैदराबाद में, बहुत है। स्क्रिप्ट की कमी है, स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते इस चीज के अंदर। हम लोग भी, हमें भी शौक है, हम आए बेसिकली, मैं नापा से ही हूँ तो मैंने थिएटर की स्टार्ट थिएटर से ही लिया, शब्बीर भाई भी थिएटर से ही स्टार्ट लेने वाले लोग हैं, और जो कल हमारे साथ आर्टिस्ट थे नासिर बुनेरी, रफ़ीक इसानी और ये जो फनकार हैं हमारे जो दवार का ऐसा है, ये बेसिकली थिएटर के ही लोग हैं, लेकिन वो बेचारे कहीं ना कहीं अपना ये तहरीर आपको कर रहे मैंने हैं। बताया, तो अगर आप मेरे पास तहरीर देंगे तो मौजूद है। सीनियर जूनियर आर्टिस्टों का मिलाप करके साहब, हम ले बहुत अच्छी स्टोरी को लेकर आएंगे। तैयार शुदा है मेरे पास। ड्रामाई शक्ल में अगर इसको ले आएंगे ना सर, तो फिर सर मेरा आमिर भाई इरादा ने है, लिखी है तो यकीनन मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि जो गुल मोहराबाद है जी। वो एक बहुत जबरदस्त किताब है, क्योंकि वो एक तफसीलन किताब है और शहर हैदराबाद बेसिकली, क्योंकि हम हैदराबाद कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ये फख्र है इस बात पे, ये जुमला कहने में कि हम सब पक्के हैदराबादी हैं। तो हैदराबादी होने के नाते हम गुल मोहराबाद, क्योंकि हैदराबाद शहर की कहानी है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक स्क्रिप्ट तैयार करें, उससे ड्रामाई अंदाज में, वो जो 10 एपिसोड 5 एपिसोड का ड्रामा हो, क्योंकि हमारा जो चैनल आ रहा है एंटरटेनमेंट पाकिस्तान, हम उसे एपिसोड वाइज उस पर नशर करें, तो आप हमें गुल मोहराबाद को समेट के एक स्क्रिप्ट की शक्ल में दें ड्रामाई अंदाज में। जब ये किताब मैं तहरीर कर रहा था और इसकी किरदार तख्लीक कर रहा था, तो पस मंज़र में और बैन सुतूर मेरा यही मकसद था कि किसी वक्त भी इसको ड्रामाई शक्ल दी जा सकती है, खा वो थिएटर पर हो, खा वो फिल्म की सूरत में हो, या खा वो ड्रामे की शक्ल में हो। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो शिकायत है स्क्रिप्ट नहीं है, वो मैं आपको जितने मर्जी आप चाहें और मेयारी और हर लिहाज से मैं आपको बताऊं, ये किताब मेरी जो गुल मोहराबाद है वो एकेडमी ऑफ लेटर्स की जानिब से सन 2021 के जो बेस्ट बेहतरीन तख्लीकी अदब में मुंतखब हुई और उसकी फहरिस्त में वो शामिल है। मुझे इस्लामाबाद भी मदऊ किया गया था और अल्लाह का शुक्र है मेरी चीज़ें हैदराबाद में तख्लीक हो रही हैं और होती रहेंगी, और ये किसी एक शख्स से मंसूब नहीं है, सब मिलजुल कर काम करेंगे और शहर और इदारे ऐसे ही बनते हैं, इसमें सब मिलकर चलते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत जल्द गुल मोहराबाद का एक ड्रामाई स्क्रिप्ट हमें देंगे और इंशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ और एएनएम प्रोडक्शंस हमारी टीम रिसेंटली हमारे हैदराबाद के एक राइटर ने हमें एक स्क्रिप्ट दिया, पहला ही स्क्रिप्ट था, और बड़ा नाम है हैदराबाद का, शोबिस एनालिस्ट भी है, रिपोर्टर भी हैं, और बड़े अखबार के लिए वो लिखते हैं, जंग के लिए भी वो अपनी लिखते हैं कहानियां। तो उन्होंने हमें एक स्क्रिप्ट दिया और ऐसा स्क्रिप्ट था कि आप यकीन करेंगे उसको बाकायदा शूट करना भी बड़ा चैलेंज होगा, बहुत जबरदस्त। वो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, उसको शूट करना भी, उनका नाम भी उसके लिए वो कैरेक्टर भी हमने उसके लिए सलीम मिराज, तो वो हमारे याकूब रशीद साहब हैं हैदराबाद के, बहुत जबरदस्त लिखने वाले, बेहतरीन तजियाकार भी हैं, शोबिस जर्नलिस्ट भी, बहुत बड़ा अखबार है, निगार उसमें लिखते हैं। हाँ, निगार के लिए वो लिखते हैं। तो उन्होंने जो शबीर भाई स्क्रिप्ट दिया ना, तो वो बेसिकली सलीम मिराज का कैरेक्टर है, मुझे बताया था उन्होंने। हाँ, तो वो किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, बिल्कुल चैलेंज से कम नहीं। और वैसे स्क्रिप्ट की दुनिया में अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी निकल आया हूँ, जवार मैंने ही लिखी है, आपको पता है उसका राइटर मैं हूँ, तो एक हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप आप में तो बहुत सारे टैलेंट है, राइटिंग का ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि मेरी एक और कोशिश है यूनिवर्सिटी के बाद इस हवाले से कि एक टेक्नोलॉजी पार्क हैदराबाद में, उसके लिए जगह मुंतखब हो गई है, और जो तकनीकी इदारे हैं और जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारे हैं उनसे भी बातचीत चल रही है कि एक टेक्नोलॉजी पार्क हैदराबाद में कायम किया जाए, ताकि अब ये देखिए ना कि फिल्म में सिर्फ स्क्रिप्ट या एक्टिंग अदाकारी या सिर्फ तहरीर नहीं है, या लोकेशंस भी चाहिए, उसकी पेशकश नहीं, उसकी जो तकनीकी सहूलियात हैं, मिक्सिंग है, साउंड इफेक्ट्स हैं, एनिमेशंस हैं, ये बहुत अहम है। और ये जो इवन जो इंडिया में जो फिल्म बनती है बॉलीवुड, उनकी भी
हांगकांग या सिंगापुर या दूसरी जगहों पर जाती हैं, इसी तरह हॉलीवुड की मूवीज़ भी इन तकनीकी सहूलतों के लिए दूसरे मुल्कों में आती हैं। तो मेरा जो ख्वाब है वो ये है कि दुनिया भर में बनने वाली फिल्में एक दिन हैदराबाद आएँ, यहाँ का जो लड़का अपने लैपटॉप पर बैठा हो या जो अपना उसका जो हाउस हो, मीडिया हाउस हो या सॉफ्टवेयर हाउस हो, वहाँ वो उसको क्रिएट करे और उसकी एनिमेशन, उसकी मिक्सिंग, उसकी साउंड इफेक्ट्स और उसमें जो भी कलरफुल रंगीनियाँ बखेरनी हो। और ये कोई इतना नामुमकिन काम नहीं है, इसमें सिर्फ दिमाग है और एक अहद है कि आप अहद कर लें और इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस सिमत में चल पड़ते हैं तो इस हवाले से भी हैदराबाद में बहुत ज़्यादा एक टैलेंट जो है, अहलियत वो मख्फी है। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम साथ मिलके ये सब करेंगे और मेहनत करेंगे। और वक्त का जो प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है और अब हम जो है वो नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे से दोनों आप साहिबान जो है वो हैदराबाद के शहरियों के लिए ईद के मौके पर छोटे छोटे से शॉर्ट पैगाम दें। क्यों वो पैगाम नहीं देंगी? नहीं, वो उनसे भी लेंगे, उनसे शर्मा बहुत रही है, वो उनकी मुस्कुराहट ही पैगाम है। नहीं, आपने यही पैगाम देना है कि मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे। लेकिन ये आप अपने मुंह से बोलेंगे, आपके पास आएंगे, जब तक आप अपने ज़हन में सोच लें अपने ज़हन से। सबसे पहले आप दे पैगाम। हमेशा खुश रहिए। मैंने कहा था ना छोटा सा पैगाम हुआ। जी शबीर भाई। ये तो कल तक मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये कि मैं ये कहूँगा कि हैदराबाद को ऑन करना चाहिए हमें। मैं ख़ास तौर पर हैदराबाद के लिए कि हैदराबाद को ऑन करना चाहिए। और जैसे अल्लाह ताला ने आमिर भाई जैसे सपूत हैदराबाद को दिए, ये ऐसी सोच हमें भी रखनी चाहिए, तमाम शहरियों को रखनी चाहिए, ना कि हम किसी और पर उस मतलब इल्ज़ामात दें कि जी उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। ठीक है, हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। आमिर भाई को मैंने कभी नहीं देखा कि आमिर भाई ने ये कहा कि यार हुकूमत ने ये नहीं किया या फलां ने ये नहीं किया। आमिर भाई ने कहा कि हम ये कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं। जबरदस्त। तो हमें भी ये सोच लानी चाहिए और अपने शहर को ऑन करना चाहिए, अपनी सोच को मजबूत रखना चाहिए। जबरदस्त जी सर। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, शुक्रिया शब्बीर आपका। और आज मैं समझता हूँ कि फिलवाकई एक बामकसद और उसके साथ साथ एक बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में हम सब ने, आबिद आपका बड़े हम गाने से महसूस हुए, आप तो छुपे रुस्तम निकले। वैसे बड़े मशहूर हो गए लेकिन मेरी उम्र में ज़रा मुश्किल है कि आपसे वो हो, लेकिन आज आपसे भी तारुफ हुआ। तो मेरी जानिब से हैदराबाद न्यूज़ को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, हैदराबाद न्यूज़ को शाबाश। और आप इसी तरह अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और आखिर में मैं अपनी जानिब से तमाम देखने वालों को, तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कुछ बात करना चाहता था, जैसे कि शबीर भाई ने कहा कि हैदराबाद को हमें ऑन करना चाहिए। बाकी हैदराबाद में बहुत टैलेंट है, एक्टिंग के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से हैदराबाद में बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं और जो कि पाकिस्तान लेवल पर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। तो ये है कि हम सबको जो है हैदराबाद को ऑन करना चाहिए। और जिस तरह आमिर भाई ने कहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक पार्क होना चाहिए, टेक्निकल पार्क होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा टैलेंट है उसको मौका नहीं मिलता आगे जाने के लिए। तो जब यहाँ हमारे पास सारी सहूलतें मौजूद होंगी तो हम अपने शहर से ही रहकर पूरी दुनिया को अपने शहर का टैलेंट दिखा सकते हैं। दरअसल ये है वो आवाज़ हैदराबाद जो आपने बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बड़े खुश नसीब हैं हम सर। सब मिलके इस आवाज़ को तवाना बनाएंगे और यही आवाज़ हैदराबाद का मकसद है। सर हमारे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती की बात ये है कि अगर हम शोबिस से, जैसे मेरी जो प्रोफेशन है वो अगर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो हम खुश नसीब इसलिए भी है कि हमारे पास सलीम भाई जैसा नाम है हैदराबाद में, जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनसे हम मशवरा ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमने अपनी मूवी के सीन्स भी उनको दिखाए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे रिमार्क दिए थे उसके लिए। जबकि हम उस लेवल पे नहीं जा सकेंगे जो एक लेवल होता है, क्योंकि हमारे पास वो बजट्स नहीं है, वो वसाइल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश इंशाल्लाह इसके लिए पूरी अच्छी तख्लीकात बजट से नहीं, दिमाग से, दिल और दिमाग से होगी, बिल्कुल। और ये बड़े हमारे लिए फख्र की बात आप जरूर जाएंगे। हाँ जी, मैं तस्दीक करता हूं इंशाल्लाह आप जी। आप ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शबीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैम आपका शुक्रिया, आबिद आपका बहुत शुक्रिया, नुमान हमारे साथ थे, नुमान आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने दोनों दिन हमें जो है बड़ा अच्छा मौसीकी हमें दी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ और बल्कि ओवर हो गया हमारा टाइम, क्योंकि जब ब्रिगेडियर साहब से गुफ्तगू चलती है तो वक्त का तकाजा नहीं रहता है। तो आपको हमारी ट्रांसमिशन कैसी लगी? ये 2 दिन की ट्रांसमिशन थी, हमने आपको दिखाई, आज हमारा लास्ट एपिसोड है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात तो होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी न किसी मकसद के लिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट पर, किसी न किसी प्रमोशनल वीडियो में मैं आपसे मिलता रहूँगा इंशाल्लाह। अब जो हमारी मुलाकात होगी, अगली ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे करम पाकिस्तान जश्न आज़ादी पर।
तो मुझे, मेरी पूरी टीम को, ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी को, हमारे सारे मेहमानों को, हम सबको दीजिए इजाज़त। अब्दुल्ला बिल्डर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये ज़बरदस्त जगह दी, पूरा रमज़ान और फिर 2 दिन ईद के, तो ये तकरीबन 32 दिन हम 31 दिन हम इनके साथ जो है वो मौजूद रहे और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हमें मिली। और अब्दुल्ला बिल्डर्स की बात क्या है, तो हम बहुत मशहूर हैं अब्दुल्ला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, इकबाल कुरैशी साहब के, ब्रिगेडियर आमिर जाहिद साहब के, नजम साहब के, और तमाम जो हमारे साथ इनके जो नीचे जो भी लोग हैं, कलीम भाई हैं, दीगर लोग हैं, अरबाज हैं, वाजिद हैं, पूरा का पूरा स्टाफ, इवन नीचे जो लोअर स्टाफ है वो तक का रवैया, मोहब्बत हमारे साथ इन दिनों में रहा और बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेशन के साथ रहे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी फौरी तौर पे जो है वो सब लोग एक्टिव हो जाते थे, तो ये बड़ा अच्छा सफ़र रहा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दुखी दिल के साथ कि बस हमें इख्तिताम करना है और ये वक्त कलील होता है और ये चीज़ें जो है वो वक्ती होती हैं, क्योंकि ईद अब ख़त्म होने लगी है, तीसरा दिन हम भी छुट्टी करेंगे, अब 2 दिन हमने काम किया है, तो अब हम कल फैमिली के साथ ईद मनाएंगे जाके। तो जब तक के लिए इंशाल्लाह अपने मेज़बान उज़ैर खानज़ई और ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट, मेन बाईपास रोड, अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट, सिक्योरिटी सिस्टम, वेकरा रोड, खूबसूरत पार्क। त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333 078 1163।